اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جسے میں کچھ اچھی خبر کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے غزہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ عالمی دباؤ، انٹرنیشنل لیول پر اسرائیلی آتنکوادیوں پر جو پریشر اور جو دباؤ آیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس عالمی دباؤ کا اثر پازیٹو یہ سامنے آیا کہ مصر سے غزہ میں امدادی ٹرکوں کی روانگی ہو رہی ہے۔ مصر سے ملی اطلاعات کے مطابق غزہ کے لیے مصر سے امدادی سامان کے ٹرکوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے مصر کے ریاستی ٹیلی ویژن القاہرہ کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل کا بھیجنے کا سلسلہ کئی مہینوں کے بین الاقوامی دباؤ اور امدادی اداروں کے انتباہی بیانات کے بعد شروع ہوا ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ علاقے میں قحط کی سی صورتحال پھیل رہی ہے۔ امدادی سامان کی روانگی سے چند گھنٹے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے اقوام متحدہ کے قافلوں کی محفوظ نقل و حرکت کے لیے خصوصی راہداری قائم کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا ہے کہ گنجان آباد علاقوں میں امدادی سامان کی فراہمی میں وقفہ دیا جائے گا۔ مصر اور غزہ کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ سے نمائندے نے بتایا کہ درجنوں ٹرک امداد لے کر جنوبی غزہ میں کراسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یورپ میں، یعنی یورپین کنٹریز میں شدید گرمی، سخت گرمی ہے۔ ترکی کا تو حال یہ ہے کہ ترکی میں 50.5 یعنی 50.5 یا 51 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہے۔ یورپ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ترکیہ کے شہر سلوپی میں درجہ حرارت 51 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یونان، قبرص اور دیگر ملکوں میں درجنوں مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ کئی ہلاکتیں اور بڑے پیمانے پر نقصان کی خبریں آ رہی ہے۔ یورپ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں کئی ملکوں میں درجہ حرارت معمول سے کئی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اس قدر نمایاں ہو چکے ہیں کہ جنگلات میں آگ، انسانی ہلاکتیں اور وسیع پیمانے پر تباہی روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ ترکی کی خبر ہے کہ ترکی میں بڑے پیمانے پر جنگل میں آگ بھڑک چکی ہے۔
आग इतनी जबरदस्त है कि शहरी इमदादी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ गाड़ियां भी फंस गई है। मकामी अफराद पैदल भाग रहे हैं क्योंकि आग ने एक अहम सड़क को भी अपनी लपेट में ले लिया है। नाज़रीन, गजा को लेकर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं गजा में इन 2 सालों में इजरायली आतंकवादी फौज ने आतंकवाद का जो नंगा नाच खेला, 70,000 से ज्यादा इंसानों को, सिविल सिटीजन्स, 20,000 बच्चे, 20,000 औरतों को कत्ल कर दिया। अब खबरें आ रही कि गजा को मुकम्मल खत्म करने का ऐलान भी गोया के हो चुका है। गुज़िश्ता रोज इजरायली वीडियो से गुफ्तगू करते हुए वहां के वजीर सकाफत ने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि गजा को खत्म किया जा रहा है, ये एक शर है जिसे मिटाना जरूरी है और हमें इसके बासियों को यानी गजा और फलस्तीन के लोगों को भी खत्म करना है। ये वही वजीर है जो नवंबर 2023 में कह चुका है कि गजा पर एटमी बम भी ऑप्शन है, यानी हम एटमी बम भी डाल सकते हैं। और उसके इसी बयान पर इजरायली काबीना को फौरी वजाहत देनी पड़ी थी, मगर ये मौजूदा बयान एटम बम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये महज एक मुमकिना ऑप्शन नहीं बल्कि एक जारी अमल की नुमाइंदगी करता है कि गजा को गोया के खत्म करने का ऐलान ही नहीं, पूरा प्लान और प्लान के बाद ऐलान हो चुका है। तारीख के सफ़ात जब मजलूम अक़वाम की चीखों से नम हों और जुल्म बोलने लगे तो फिर अल्फाज की हुर्मत टूट जाया करती है। आज के दौर में जब आलमी सियासत इंसानी हुकूक के नकाब में नस्ल कुशी को जायज़ करार दे तो यह तस्लीम करना पड़ता है कि जुल्म अब सिर्फ खंजर नहीं रहा बल्कि कलम, जबान और कानून का रूप भी इख्तियार कर चुका है। अब यह खबर तो कम से कम आलम इस्लाम के बेगैरत हुक्मरानों को जगाने के लिए काफी होना चाहिए कि गजा को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी माओ और बहनों को खत्म करने का, उनकी नस्ल कुशी करने का पूरा ऐलान हो चुका है। इस्लामी हुक्मरानों, बेशर्मो, बेगैर तो अब भी उठो, वरना अल्लाह के यहाँ तुम चाहे काबतुल्लाह की खिदमत कर लो या रोज़ा रसूल की खिदमत कर लो, बख्शे नहीं जाओगे। नाज़रीन, अमेरिका से बड़ी खबर इस वक्त आ रही। जी हाँ, मिशिगन वालमार्ट जो बड़ा मशहूर इलाका है अमेरिका का और बड़ी मशहूर जगह है, वहां पर चाकूबाजी का खौफनाक मामला सामने आया है। 11 अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं और बताया जा रहा है कि चाकूबाजी इतनी खतरनाक हुई है कि 6 की हालत संगीन बताई जा रही है। मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रैंड ट्रेवर्स काउंटी शेरिफ दफ्तर ने बताया कि शाम तकरीबन 4:45 बजे एक 42 साल शख्स स्टोर में दाखिल हुआ और एक फोल्डिंग चाकू से 11 लोगों पर हमला कर दिया। अमेरिका की मिशिगन रियासत के ट्रेवर्स सिटी के एक वॉलमार्ट स्टोर में चाकूबाजी का यह खौफनाक मामला सामने आया है। इस वाक़े में 11 लोग शदीद जख्मी हैं जिनमें 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह अचानक हुआ वाक़या लगता है। इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े के बाद हंगामी खिदमात की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ूअ पर पहुंची और लोगों की मदद की। यह खबर इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका जो अमन की बात करता है, खुद अमेरिका का यह हाल है कि कभी भी किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, किसी लॉज, किसी पार्क, किसी स्कूल में वहां पर गोलीबारी और चाकूबाजी आम है। यह अमेरिका का कल्चर बन चुका है और अमेरिका चौधरी बनता है और दुनिया के कई मुल्कों में अमन कायम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है, जबकि खुद अमेरिका का बड़ा बुरा हाल है। अमेरिका में आम अवाम परेशान हैं। आखिरी बड़ी खबर भी अमेरिका की ही आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप ने कमला हैरिस पर, आप जानते हैं कमला हैरिस कौन है, इन पर ट्रंप ने मुकदमा चलाने का डिमांड किया, मुतालबा किया। बताया जा रहा है कि हॉलीवुड सितारों को करोड़ों डॉलर की गैर कानूनी अदायगी की गई। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर मुकदमा चलाने का डिमांड किया है। ट्रंप के इल्जामात ने अमेरिकी सियासत में हिमायत को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी से हिमायत के बदले अदायगी करना जुर्म है? यह सवाल अब कानून और सियासतदानों के दायरे में बहस का मौजू बन गया है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर सियासी हंगामा बर्पा कर दिया है। इस मरतबा उन्होंने साबिक अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और कई मशहूर शख्सियतों को निशाना बनाया है और उन्होंने ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि 2024 के सदारती इंतखाब के दौरान कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने मशहूर सितारों को तशहीर के लिए करोड़ों डॉलर्स की अदायगी की। उन्होंने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए कसूरवारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का डिमांड किया है। कमला हैरिस को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ तो गली के लौंडों को भी प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है और लाखों करोड़ों रुपए गली के लौंडों से लेकर रखेल मीडिया तक को पहुंचाए जाते हैं और प्रचार किया जाता है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस की हांडी और गैस की हांडी से लेकर रेलवे टिकट तक हमारे यहाँ प्रचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। सरकार का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो प्रचार में लगा ना होता हो। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।